Hello friends, I am Sanjay Lalit. I am a corporate lawyer from Jupiter Legal Mumbai. Here just I'd like to emphasize what is the impact of the corona on the entire nation, entire world in few my thoughts. In fact, we have all seen the corona has impacted all the businesses, all the people in one way or other way. So we should now strive how to revive the world economy, Indian economy, as far as possible at our end. So everyone in his own, as per his own potential, he can encourage to do something for the revival of the Indian economy. We have all seen जब कंट्री में केसेस कोरोना के कोविड के बहुत कम थे, then there was a complete lockdown. But in the interest of the revival of the Indian economy, we have all seen effective June, there was starting of unlock 1, then in July there was unlock 2, then unlock 3. So the government want that there should be a revival of economy. So in all pretext, the revival of economy is more important than anything for the revival of the mankind on the earth. अगर हमें जीना है तो इकोनॉमी हमें चाहिए मालूम है हमें बीमारी है कोरोना है कोविड है तो वी कैन मेंटेन द proper social distancing, we can maintain a proper other causes, we should avoid public contact, we should resort to other kind of maybe precaution. लेकिन अपने को हर हाल में जो है इकोनॉमी एक्टिविटी को मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है और अपने को इंडियन इकोनॉमी को बहुत जल्दी रिवाइव करना है. तो अर्जेंसी अभी ये है कि अपने को इंडियन इकोनॉमी को जल्दी से जल्दी रिवाइव करना है. हर कोई, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो मास्टर है, चाहे वो कोर्ट मैनेजर है, चाहे वो जज है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, एनी पर्सन ऑन द अर्थ, ही कैन डिवोट, ही कैन कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द इकोनॉमी रिवाइवल. हमें खाली अर्जेंट काम नहीं करना चाहिए, हमें जो भी नेसेसरी इंडियन इकोनॉमी के लिए हमें वो काम करना चाहिए. जैसे आई कैन गिव यू वन एग्जांपल which we are facing for the last maybe 5 months in the courts. Courts are doing only urgent work, but they are in some sphere they are ignoring the routine activity which are also necessary for the revival of the public business economical activities. तो कोर्ट्स अभी खाली अर्जेंट हियरिंग्स अटेंड कर रहे हैं बट दे आर गिविंग सेकंड इम्पोर्टेंस टू द अदर मैटर्स. So I just request to court, to all the tribunals, including NCLT, they should consider to hear all the matters in due course. अगर हम बहुत जल्दी अगर IBC के मैटर्स, कोर्ट्स मैटर जल्दी रिजोल्व करेंगे तो अल्टीमेटली इससे जो है इकोनॉमिकल एक्टिविटी और आगे बढ़ेंगी और कंट्री का फायदा होगा. हमें खाली अर्जेंट काम नहीं करने चाहिए, हमें जो भी काम हम कर सकते हैं, चाहे वो कम अर्जेंट है, ज़्यादा अर्जेंट है, सब काम हमें करने चाहिए. We have observed in the past under the Companies Act बहुत सारे कंपनीज के नेम स्ट्रक ऑफ हुए हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स के नेम डीएक्टिवेट हुए हैं. वी ऑल आर अवेयर इन द कंट्री everyone has Aadhaar card, everyone has PAN card. As we all like to start the business in an organized way under the limited liability partnership or companies structure, we need to have a director's identification number which we say commonly as DIN, D-I-N. So the businessmen, the entrepreneurs which like to start business in an organized way need to have DIN. DIN means Director's Identification Number. So recently, after the demonetization of 2016, in 2017-18, lot of companies has been struck off by Ministry of Corporate Affairs through Register of Companies. उसके रिजल्ट में बहुत सारे बिजनेसमैन डायरेक्टर्स के दिन जो है डीएक्टिवेट हो गए हैं. उस प्रोसेस में क्या हो गया है, गेहूं के साथ घुन भी पिस गया है. तो जो जेन्युइन बिजनेसमैन है जिनसे थोड़ी बहुत गलती हुई है, तो आई रिक्वेस्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उन लोगों को प्लीज बाय टेकिंग अ स्मॉल पेनल्टी, स्मॉल इशूइंग अ स्मॉल वार्निंग, उनके दिन बाय फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस लॉ उनके दिन जो है रिवाइव होने चाहिए. और उनके दिन रिवाइव होंगे तो वो कंट्री के लिए कुछ बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हैविंग अ शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, उनके भी दिन डीएक्टिवेट हो गए हैं. तो जो जेन्युइन केसेस में
गलती से या अंडर मिस्टेक ऑफ लॉ कुछ दिन डीएक्टिवेट हुए हैं, तो अपनी गवर्नमेंट को प्रार्थना है, प्रेयर है, उनके बाय फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उनके दिन जो है बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ थ्रू एनसीएलटी और आरओसी और रीजनल डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनके दिन जो है एक्टिवेट किए जाएं, जिससे कि वो भी कंट्री की इकोनॉमी में कुछ योगदान दे पाए। काफी बार नॉर्मल बिजनेसमैन ही डोंट नो कि हमारा दिन डीएक्टिवेट क्यों हुआ है। Sometimes they delegate their duty of work to some maybe chartered accountant, company secretaries, lawyers. कभी-कभी लॉयर से भी मिस्टेक हुई है, कभी-कभी सीएस से भी मिस्टेक हुई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी मिस्टेक हुई है, बट उसके इम्पैक्ट में जो है डायरेक्टर्स के टीम डीएक्टिवेट हो गए हैं। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट टू द रेगुलेटरी एजेंसी टू कंसिडर एंड रिव्यू वंस अगेन इन जेन्युइन केसेस जहाँ पे एक्सचेकर को रेगुलेटरी एजेंसी को लॉस नहीं हुआ है, वहाँ पे बाय completing the due process of law as early as possible, deactivated DINs should be revived as early as possible. क्योंकि हम जितने ज़्यादा दिन जो डीएक्टिवेट हुए हैं एक्टिवेट करेंगे तो वो कंट्री के इंटरेस्ट में इकोनॉमिकल रिवाइवल में कंट्री को हेल्प करेंगे। तो वी शुड ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और ऑल द स्टेट शुड डू एनी एक्ट, all the acts which are essential for the revival of the Indian economy. We have faced enough in the last 6 months because of Corona. Now, this is the right time for all of us to contribute their best possible time, energy for the revival of the Indian economy. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वी रिक्वेस्ट यू इसको आप लाइक करिए और लोगों को फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच।